Assalamu alaikum. In today's video, we will be talking about research methodology. Please keep in mind that research methodology is a very wide subject, and this cannot be covered in one or two or three lectures. At least it needs 10 or 15 lectures so that it can be covered. But as far as we are concerned, in this video, we will be talking about some of the key concepts of research methodology, and so that we can be able to understand a few things about it. So the first thing is that research paradigm. So what is a research paradigm? This first of all, let me tell you that this is a very good book on research methodology, and I have selected different portions from this book, and I have compiled them so that we can be able to understand research methodology in a better way. So what is a research paradigm? A research paradigm is a worldview or a perspective about research held by a community of researchers that is based on a set of shared assumptions, concepts, values, and practices. More simply, it is an approach to thinking about and doing research. So this means that the first thing is that this is the worldview. Worldview means that the way that a researcher looks toward the world, the way that he, you can say, has in order to understand things, the perspective that he has. So what we can say is that research paradigm is a worldview or it is a perspective, and this perspective is it is held by a community of researchers, and it is not held by one researcher, but it is held by community of researchers, and this is based on shared assumptions, shared concepts, shared values, shared practices. This is called the research paradigm. And as far as research paradigm is concerned, there are a few things that we need to understand. For example, we have the positivism, constructivism, realism, idealism, you can say Marxism. So these are the different research paradigm. It means that they are able to show the different worldviews that are held by a community of researchers. For example, there are many researchers who are able to research on topics within the paradigm within the paradigm of Marxism or positivism. So this is, you can say that this is called the research paradigm. And please keep in mind that paradigms and theoretical frameworks are not the same, although they are similar in many ways, yet you see that they differ from each other. I can give you an example. For example, if you are you can say if you are doing a research on a god of small things that is written by Arundhati Roy, if you are writing this within a post-colonial perspective, or you can say, or any other perspective, so this means that actually what you are doing is that the theoretical framework that you have selected is, you can say, post-colonial. But as far as the paradigm is concerned, the paradigm, it can be qualitative or it can be quantitative, or it can be the mixture of both. So this is paradigm. So paradigm and theoretical frameworks, they are, although they are similar in many ways, yet they are different from each other. So we have covered this, and right now we will be moving towards how many kinds of paradigms are there. There are three kinds of paradigm, as this has been written, that the three major educational research paradigm that approaches: quantitative research paradigm, qualitative research paradigm, and mixed research paradigm. So these are the three paradigms that are very important and for us to understand. So first of all, we see that there is a word that is called incompatibility thesis. Incompatibility thesis is a very important term in order to understand the differences between qualitative research method paradigm and quantitative research paradigm. And you can say, you see that incompatibility thesis means the proposition that one cannot mix quantitative and qualitative research. Incompatibility thesis says, according to incompatibility thesis, qualitative research paradigm and quantitative research paradigm, they are totally different from each other, and we cannot be able to mix them with each other. So this is incompatibility. Incompatibility means that qualitative research paradigm or quantitative research paradigm, they are totally incompatible to each other. So this is called incompatibility paradigm. But there is a scholar
whose name is Egon G. Goba, and he actually initiated a debate in 1970s, 80s, and 90s, and the debate is called Paradigm Dialogue. Paradigm Dialogue means that he actually started to understand, or in other words, you can say that this philosopher or this scholar, he tried to reconcile qualitative research paradigm to quantitative research paradigm. So first of all, he was of the opinion that as far as these paradigms are concerned, these paradigms they differ with regard to ontology, epistemology, methodology, axiology, and rhetoric. So these are the things, you can say, with the reference of which qualitative paradigm and quantitative paradigm they differ from each other. One is ontology. Ontology means that branch of philosophy dealing with the nature of reality. Epistemology, this is a theory of knowledge. And methodology, actually this is very important. Methodology means that here we can say that it is with regard to the methodology. Methodology means that the different you can say a set of methods or the body of methods that are applied by you can say paradigms, they are applied by these paradigm, and with regard to this methodology, all the body of method or the set of method, these paradigm they differ from each other. ठीक है, तो लैंग्वेज के लिहाज से भी, रेथरिक के लिहाज से भी डिफर फ्रॉम ईच अदर. तो ये अभी तक हमने ये चीज़ें देखी. अब आगे हम देखते हैं. आगे ये होता है प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफिकल पोजीशन दैट व्हाट वर्क्स इन पर्टिकुलर सिचुएशन इज इम्पोर्टेंट. Pragmatism is very important. Pragmatism is actually a philosophical position that emphasizes that only that what is you can say important, that what is workable or what works is important. यानी ये बिलीव ये करता है कि जो चीज़ एक ख़ास वक्त में एक वर्क कर रही हो, काम कर रही हो, ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. ये प्रैग्मेटिज्म का स्कूल ऑफ थॉट होता है. अब प्रैग्मेटिज्म ने क्या किया? अगर हम प्रैग्मेटिज्म को देखते हैं तो इसी हवाले से ये क्योंकि इसने व्हाट प्रैग्मेटिज्म डिड वाज दैट कि इट रेकनसाइल्ड क्वालिटेटिव पैराडाइम एंड क्वांटिटेटिव पैराडाइम, और वहाँ से एक नया पैराडाइम वजूद में जिसको हम मिक्स्ड रिसर्च पैराडाइम हम कहते हैं. अब ये देखें, तीन इन्होंने एग्जांपल, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड देन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड देन वी हैव द मिक्स्ड रिसर्च. अब मिक्स्ड उन्होंने दरमियान में इसलिए लिखा है चूँकि दिस इज़ अ सिंथेसिस बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. अब देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है. ठीक है, क्वांटिटेटिव अब इसमें नाम से ज़ाहिर है. क्वांटिटेटिव में जो की वर्ड है जो वो है क्वांटिटी. ठीक है, तो क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? यानी रिसर्च दैट रिलाइज प्राइमरीली ऑन द कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. ठीक है, अब क्वांटिटेटिव डेटा क्या होगा? डेफिनेटली वो न्यूमेरिकल डेटा होगा, वो मेजरमेंट से रिलेट करेगा. ठीक है, तो ये होगा. तो क्वालिटेटिव क्या होगा? रिसर्च दैट रिलाइज प्राइमरीली ऑन द कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. अब क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? वर्ड्स होते हैं, स्पोकन और रिटन, टेक्सचुअल एनालिसिस वगैरह वगैरह. अब देखिए, हमने एक चीज़ हमने इसमें याद रखनी है, चूँकि वी आर एक्चुअली एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर. ठीक है, तो अब लिटरेचर के अंदर जो ज़्यादातर हमारा पैराडाइम हम इस्तेमाल करते हैं वो क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि हम वर्ड्स को हम लेते हैं, वर्ड्स का एनालिसिस करते हैं. ठीक है, हम तो ये चीज़ होती है. अब इसके बाद मिक्स्ड है. मिक्स नाम से ज़ाहिर है कि मिक्स क्या होगा? इन दोनों का जो सिंथेसिस होगा. तो ये तीन किस्म के पैराडाइम्स होते हैं जो हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं. तो पैराडाइम इस्तेमाल करने के बाद हम जो लिटरेचर में अगर हम बात करें तो लिटरेचर में हम इसके बाद थियरी भी हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम मिसाल के तौर पे हम फेमिनिज़म को लेके आ सकते हैं, हम उसमें पोस्ट कॉलोनियलिज्म के लेके आ सकते हैं, हम उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के थियरेटिकल पर्सपेक्टिव को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका पैराडाइम के हवाले से बात. अब पैराडाइम में हम देखें, अब इसमें हम देखते हैं हम इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच भी इस्तेमाल करते हैं. रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग का इस्तदलाल होता है, मैं इसके लिए इस्तदलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. अब इंडक्टिव का मतलब पर्टिकुलर टू जनरल और डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल टू पर्टिकुलर. ठीक है, अब पर्टिकुलर टू जनरल कैसे होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लिटरेचर से. लिटरेचर से एग्जांपल इस तरह है कि जैसे एरिस्टोटल की किताब है द पोएटिक्स. दिस इज़ व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. अब इस किताब के अंदर आप देखें कि वो बताता है एपिक क्या होती है, ट्रेजिडी क्या होती है, कैथारसिस क्या होता है, ट्रेजिडी के एलिमेंट्स क्या होते हैं. अब देखें, इसने क्या ऐसे ही बता दिया? उसने
पहले पर्टिकुलर जनरल कैसे की तरफ गया, वो इस तरह से गया कि यानी व्हेन बिफोर डेवलपिंग हिज थियरी, ठीक है, यानी बिफोर एक्सपाउंडिंग हिज थियरी अबाउट ट्रेजेडी एंड एपिक, तो उसके पास कोई वर्क्स थे, उसके पास होमर की इलियड भी थी, उसके पास एस्काइलस के ड्रामास भी थे, यूरिपिडीज के ड्रामास भी थे, उसके पास सोफोक्लिस के ड्रामास भी थे, ठीक है। उसने इनको पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद क्या किया, उसने उन रूल को डराइव किया और डराइव करने के बाद ये बताया कि एपिक ये होती है, एपिक के ये खसूसियात होती हैं, ट्रेजेडी ये होती है, ट्रेजेडी की ये खसूसियात होती हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ गया। अब जनरल से पर्टिकुलर मतलब क्या होता है कि हम जो है ना पहले एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं, यानी तो उसको हमने फिर बाद में पर्टिकुलरली हमने उसको किसी चीज़ के ऊपर वेरीफाई करना। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जितने भी ग्रीन एप्पल्स होते हैं, ऑल ग्रीन एप्पल्स आर सोर, ठीक है, ये हमने एक स्टेटमेंट दे दी। तो इसका मतलब है फिर हमें क्या करना, हमें इसको फिर ग्रीन एप्पल के साथ टेस्ट यानी हमें टेस्ट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या वाकई ऐसा होता है, ठीक है। तो हम इसमें ये भी हम इन चीज़ों को इस्तेमाल। इसके बाद एक टर्म होते हैं इन्फेरेंस। इन्फेरेंस को उर्दू में हम बोलते हैं इस्तेंबात। इस्तेंबात का मतलब होता है कि हम जो होता है ना चीज़ों को यानी अहस करते हैं। अब हम आम ज़िंदगी में भी ऐसे ही करते हैं कि हम चीज़ों को अहस करते हैं, ठीक है। हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, हर चीज़ फुली एक्सप्लेन नहीं हुई होती, बल्कि हम उनको हम उनको अहस करते हैं। खासकर अगर लिटरेचर की बात, लिटरेचर में देखिए बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को अहस करते हैं, कैरेक्टर्स को देख के या उनके बिहेवियर्स को। तो ये चीज़ें इस हवाले से सीधा चीज़ें हैं। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे इनके दरमियान डिफरेंसेस भी हैं और डिफरेंसेस के ऊपर हम नहीं जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो हमारा लेक्चर फिर काफ़ी फील हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जी। तो चूँकि क्वालिटेटिव के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जनरली कंटेंट दैट रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ सोशल बिहेवियर फॉलोज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉर्म्स, लैंग्वेज आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि ये देखें, ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम है, ये यही कहता है कि जो हकीकत होती है वो असल में सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है। हम इस बात को बखूबी समझते हैं जो लोग इसको क्रिटिकल थेरी को पढ़ चुके हुए हैं। तो इसमें एक और थेरी आती है जिसको कहते हैं लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। जैसे आपने पढ़ी होगी ना 5वें सेमेस्टर में कि सैपर-वोर्फ हाइपोथेसिस। तो सैपर-वोर्फ हाइपोथेसिस यही थी ना कि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी और लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म का मौक़िफ़ ये था कि लैंग्वेज जो थी हमारी थाट को यानी शेप करती है, यानी हम अगर ज़बान हम सोच भी नहीं सकते। तो जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है वो कहते हैं कि लैंग्वेज हमारी थाट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, मुतासर करती है। तो यानी ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी दूसरी बात खास तौर पे जो है ना कि यानी जो लैंग्वेज है हमारी थाट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इस लिहाज से अहम है, ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ चीज़ें देखी, हमने देखा कि पैराडाइम क्या होता है, पैराडाइम के आगे हमने काइंड्स देखे हैं, इसके साथ हमने इनकम्पैटिबिलिटी थीसिस को हमने देखा। अब आगे चलते हैं, आगे इसके हवाले से देखते हैं जी। आगे बहुत अहम बात है, ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ, पिछले पेपर अगर आप देखें तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये होता है कि अब अभी हमने बात की है कि पैराडाइम जो होता है, पैराडाइम की यानी हमने अभी बात की कि क्वांटिटेटिव होते हैं और क्वालिटेटिव होते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव के ऊपर हम बात करेंगे सबसे पहले, ताकि ये अब क्वांटिटेटिव जो पैराडाइम होता है उसके आगे दो काइंड्स होती हैं, दो उसमें मेथड्स होते हैं, दो अप्रोचेस होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। अब ये क्वांटिटेटिव का प्लीज़ कीप इन माइंड, ये क्वांटिटेटिव क्या है कि यानी जो एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है क्वांटिटेटिव में हम करते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन विच द रिसर्चर्स मैनिपुलेट्स द वेरिएबल एंड इज इंटरेस्टेड इन शोइंग द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब जैसे देखें, अब इसमें देखें नाम से बिल्कुल वाज़ह है, ठीक है, कि रिसर्चर क्या करता है रिसर्च में, ठीक है, कि मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसमें जो होता है ना कि किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर देता है। मैनिपुलेट का यानी किसी को रोल असाइन करता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक आपके सामने मैं अगर एग्जाम्पल है, जैसे देखिए कि आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं कि डज बैकग्राउंड म्यूज़िक इम्प्रूव मेमोरी, ठीक है, यानी क्या ये करता है या नहीं करता, मेमोरी को इम्प्रूव करता है कि नहीं करता, यानी बैकग्राउंड म्यूज़िक। फॉर एग्जांपल आप इसमें रिसर्च करना चाहते हैं कि क्या क्लास के अंदर अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक हो तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होता है ना उससे मेमोरी इंप्रूव होती है, साइलेंस के अंदर मेमोरी इंप्रूव होती है। आप क्या करते हैं, आप क्लास में ना बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप्स में, ठीक है। यानी एक ग्रुप को आप क्या करते हैं कि एक को आप साइलेंस में पढ़ाते हैं और एक को म्यूज़िक में पढ़ाते हैं। तो वहाँ से आपने क्या किया, नतीजा आप बाद में हंस करते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। यानी यहाँ से आपने क्या किया, ये देखिए आपने रिसर्चर ने मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि आपने
क्लास को डिवाइड किया, पहले डिवाइड करने के बाद आपने उनको जो रोल थे वो आपने उनको असाइन किया है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद इसके अपोजिट आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। अब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, रिसर्च इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड देयर इज नो रैंडम असाइनमेंट टू ग्रुप्स। देखें उसमें क्या था, एक्सपेरिमेंटल में हम यानी मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को और साथ में हम रोल हम जो था ना रोल असाइन करते हैं, लेकिन यहाँ हम जो था रोल असाइन नहीं करते, ना हम मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब आप रिसर्च करना चाहते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ जेंडर एंड शॉपिंग हैबिट्स, ठीक है। अब आप कहते हैं कि यानी जो जेंडर है, जेंडर से मुराद है कि कोई भी जो जेंडर होता है, ठीक है, अब उसकी जो क्या क्या हैबिट्स होते हैं। आप क्या करते हैं कि आप फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप इधर किसी शॉपिंग मॉल के बाहर आप खड़े हो जाते हैं या शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाते हैं, आप ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जो लोग जेंडर के आ रहे हैं ना, वो किस तरीके से शॉपिंग करते जा रहे हैं। आपने उनको डिवाइड नहीं किया, आपने उनको रोल असाइन नहीं किए, ठीक है। तो आप रोल असाइन किए बगैर, मैनिपुलेट किए बगैर आप नताइज को अहस करना चाह रहे हो। तो ये दो तरीके होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के, एक होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल, एक होता है एक्सपेरिमेंटल। अब आगे हम चलते हैं, इसके बाद जो हमारा आगे का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे अभी हमने बात की है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के फर्दर मेथड, तो वो दो थे, एक एक्सपेरिमेंटल, एक नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि जो क्वालिटेटिव होता है उसके कितने मेथड्स होते हैं, वो किन किन पैराडाइम्स को इस्तेमाल करता है फर्दर। तो ये देखें जी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, ठीक है। अब इसमें देखें इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, फिनोमिनोलॉजी इस्तेमाल होता है। फिनोमिनोलॉजी बहुत आसान है समझना, ठीक है। द फर्स्ट मेजर टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ फिनोमिनोलॉजी, यानी अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव के ऊपर हमने बात की कि उसमें या तो आप अप्लाई करेंगे एक्सपेरिमेंटल या नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अगर आप क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो उसमें फिनोमिनोलॉजी एक तरीका होता है, ठीक है। एक है व्हेन कंडक्टिंग अ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च स्टडी अ रिसर्चर्स अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ वन और मोर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ फिनोमिनन, ठीक है। यानी इसमें ये बताया जाए एक फिनोमिनन को पहले तयशुदा किया जाता है और फिनोमिनन को तयशुदा करने के बाद जो होता है फिर ये देखा जाता है कि मुख्तलिफ लोगों का उसके ऊपर एक्सपीरियंस कैसा आता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट कंडक्ट अ फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी of elementary students who have lost a parent to describe the elements and the whole experience of the parental loss। जैसे मिसाल के तो the elements of phenomenological research studies to researcher to understand how people experience a phenomenon from each person's own perspective, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं phenomenological research, ठीक है। ये चीज़ होती है, तो ये उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है बड़े अच्छे तरीके से। ये मतलब फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी फिनोमिनन की तरफ लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों के तजर्बात को मालूम करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर हम तहकीक करते हैं, ये फिनोमिनोलॉजी होती है, ठीक है। ये बड़ी, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे कि आपने कहानी पढ़ी बटन 11वीं जमात में, तो बटन के अंदर आपने देखा कि मिस्टर स्टूवर्ट जो है वो एक साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहा है, ठीक है। वो उसके बारे में कहा जाता है, वो रिसर्च इसलिए कर रहा है कि यानी उसने मुख्तलिफ लोगों को यानी वो बटन दिया होगा, ठीक है, उनको बताया होगा कि आपको अगर बटन को दबाओगे तो $50,000 आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई बंदा मर जाएगा, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि उसने एक फिनोमिनन है, ठीक है, अब इसने एक नॉर्मा को बटन दिया, ठीक है, अब नॉर्मा ने दबा दिया, तो माइट भी इसने और भी लोगों को दिया हो, ठीक है। तो ये था फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, कि जब हम एक फिनोमिना की तरफ लोगों को मुख्तलिफ के एक्सपीरियंस को हम बयान करते हैं, ये फिनोमिनोलॉजी होती है। इसके बाद आगे आते हैं एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने ये कि अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस्ड ऑन डिस्कवरिंग एंड डिस्क्राइबिंग द कल्चर और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ लोगों का जो तौर इतवार, रहने के तरीके, बैठने के, बात करने की ज़बान, उनका सोशल मिलियो, हम सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं एथनोग्राफी, ठीक है, एथनोग्राफी। अब देखें जैसे कि कल्चर क्या होता है, द शेयर्ड एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, पैटर्न्स, ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे देखें कि लिखा है कि द वर्ड एथनोग्राफी लिटरली मीन्स राइटिंग अबाउट पीपल। When ethnographers conduct research, they are interested in describing the culture of a group of people and learning what is it to be the member of the group of people from the perspective of the member। अच्छा, यहाँ वो ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि यानी कि रिसर्चर है वो ये जानने की कोशिश करता है कि यानी इस ग्रुप का मेंबर, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से बनने का मतलब क्या होगा, ठीक है। एक ये रिसर्च का मेथड होता है, इसका अपना एथनोग्राफी हम कहते हैं, एथनोग्राफी। अब एथनोग्राफी के अंदर क्या होता है कि होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन भी होती है।
द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंटरेक्ट एंड हाउ दे कम टुगेदर टू मेक अप अ ग्रुप एज अ होल। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं, ये एथनोग्राफी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है नैरेटिव इंक्वायरी। नैरेटिव इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, ये देखिए नाम से, नैरेटिव इंक्वायरी का मतलब द स्टडी ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंसेस एज स्टोरीड फिनोमिनन, ठीक है। यानी यहाँ क्या होता है, ठीक है, ये देखें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये बताते हैं। इन नैरेटिव इंक्वायरी पार्टिसिपेंट्स टेल स्टोरीज ऑफ देयर लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड देयर इन रिलेशनल रिसर्च इंक्वायर इनटू रिसर्चेज इंक्वायर इनटू एंड अबाउट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अच्छा याद रखें, ऊपर हमने फिनोमिनोलॉजी की बात की, अब फिनोमिनोलॉजी और जो नैरेटिव इंक्वायरी थे डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट कैसे होती हैं, इन कंट्रास्ट टू फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी ऊपर हमने बात की, फिनोमिनोलॉजी का मतलब क्या है कि एक फिनोमिना की तरफ मुख्तलिफ लोगों का एक्सपीरियंस, ठीक है। व्हाट इज द गोल इज टू डिस्क्राइब द एसेंस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द फिनोमिनन। द नैरेटिव researcher works with the participant to discern the individual storied experience through the narrative threads, narrative, ठीक है, नैरेटिव कोहेरेंस वगैरह वगैरह, इससे वो आगाज़ करने की कोशिश करता है। तो हमने क्या देखा कि फिनोमिनोलॉजी, और उसके बाद हम अभी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नैरेटिव इंक्वायरी, हमने एथनोग्राफी भी देखी। इसके बाद आ गया था केस स्टडी। देखिए केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आप भी हम समझ सकते हैं। केस स्टडी क्या होती है कि ये लिखा कि अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वन और मोर केसेस। यहाँ हम देखें हम क्या करते हैं, यहाँ हम ये करते हैं कि जब हम कोई तहकीक कर रहे हैं तो हम एक दो जो होता है ना केस जो होता है, ठीक है, एक दो जो केस रियल लाइफ जो मतलब वाक़यात हो रहे होते हैं हम उनको मेंशन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि एक रिसर्चर है, वो अगर यानी पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म है, तो वो अगर तहकीक करना चाहता है कि क्या एक कंट्री जो डज अ कंट्री प्रोग्रेस ड्यूरिंग द मिलिट्री रूल, ठीक है, तो क्या मिलिट्री रूल के अंदर एक मुल्क तरक्की करता है या नहीं करता। अगर वो तरक्की करना चाह रहा है तो वो एक आर्ग्यूमेंट फ़र्ज़ करो लेके आ रहा है कि मिलिट्री रूल के अंदर जो होता है ना, ठीक है, वो तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है, यानी मुल्क जो होता है, तो वो क्या करता है, वो उस हवाले से वो क्या करेगा कि उसमें जैसे मिसाल अगर पाकिस्तान के बारे में बात करता है तो वो ज़िया-उल हक का ज़माना है या जो उसका अयूब खान का या खान का ज़माना है, उसको केस स्टडी भी कर सकते हैं। केस स्टडी का यानी उनको पर्टिकुलर यानी केस स्टडी के तौर पे पेश कर सकते हैं, केस स्टडी हो गया। इसके बाद आगे आती है ग्राउंडेड थ्योरी। अब ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, ग्राउंडेड थ्योरी होती है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च इज़ अ क्वालिटेटिव अप्रोच टू जनरेटिंग एंड डेवलपिंग अ थ्योरी फ्राम द डेटा यू कलेक्ट इन द रिसर्च स्टडी, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया होता है उसके बुनियाद हम एक थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ, चूँकि अगर आप लिंग्विस्टिक्स में देखें तो लिंग्विस्टिक्स के अंदर जैसे अब नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। तो यानी उसने कहा ना कि नॉम चॉम्स्की ने कि लैंग्वेज जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों होती है, क्योंकि हम एक जुमलों को डीप स्ट्रक्चर को हम सरफेस स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे हम यानी एक्टिव को पैसिव में करते हैं, हम नेगेटिव असल्टिव को हम इंट्रोगेटिव में करते हैं। तो लैंग्वेज जनरेटिव भी होती है। जनरेटिव क्यों होती है, क्योंकि लैंग्वेज जो होता है ना कि यानी आपने ये जनरेट करती है अपने आप को, ठीक है। तो वहाँ से उसने क्या किया कि उसने हम ये कह सकते हैं कि उसने मुख्तलिफ यानी एनालिसिस करके डेटा कलेक्शन करके उसका तज्जिया करने के बाद उसने ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर की थ्योरी को उसने डेवलप किया, ठीक है। तो ये होता है ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म की थ्योरीज है, ठीक है। इसके बाद आ गया था हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, रिसर्च अबाउट पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स इन द पास्ट, ठीक है। यानी पास्ट वगैरह की चीज़ों को डिस्कस किया। अब देखिए इसके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्टोरियोग्राफी क्या चीज़ है, ठीक है। कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी इज़ द वर्ल्ड हिस्टोरियन समटाइम यूज टू मीन रिसर्च मेथड्स, ठीक है। तो ये भी हम इस पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की जो होता है ना रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी हो गई ये देखें कि आगे इन्होंने टाइपोलॉजी बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है, ये आपको इसको समराइज़ कर देगी। जैसे देखें एक होता है मेथडोलॉजिकल पैराडाइम, क्या होता है क्वांटिटेटिव है या मिक्सड होता है या क्वालिटेटिव होता है। आप देखें कि अगर क्वांटिटेटिव है तो उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक एक्सपेरिमेंटल एक नॉन एक्सपेरिमेंटल। ऊपर मैंने इसको डिस्कस पे किया। मिक्स जो होती है इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। अब क्वालिटेटिव के अंदर क्या चीज़ होती है, इसमें फिनोमिनोलॉजी होती है, एथनोग्राफी होती है, नैरेटिव इंक्वायरी, केस स्टडी हो सकती है, ग्राउंडेड थ्योरी और हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये ऊपर वाले जितना भी यानी हमने बात की है ये इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ इसने समराइज़ किया है।
तो ये आगे समरी भी लिखी हुई है, ये बड़ी खूबसूरत अच्छे तरीके से लिखी है कि ये चीज़ों को सारी चीज़ों को कवर कर रही है, ये जो समरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे आते हैं, आगे अगला जो टॉपिक है इसमें आता है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। कहते हैं कि यानी द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी इज़ टू आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम रिसर्च टॉपिक अपना सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, अब रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है ना कि कहते हैं कि ऑल दो द बिगिनर्स रिसर्चर्स माइट हैव द डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो फिर अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए आपने रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप लेट्स सपोज कि आप अरुंधति राय का नावल है, हम उसे कहते हैं नावल को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अगर आपने उसको सिलेक्शन कर दिया, आप उससे सिलेक्शन करने के बाद जो होता है ना कि आगे की बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने देखा कि इस रिसर्च प्रॉब्लम का यानी उसमें कोई ऐसा मौजू है, ऐसे यानी टॉपिक है कि जिसके ऊपर टच अपन नहीं किया गया, जो छुपा का छुपा रह गया हुआ है, जिसको वाज़ह नहीं किया गया। ठीक है, जो एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हम रिसर्च प्रॉब्लम हम कहते हैं। ठीक है, अब रिसर्च जैसे देखें मिसाल के तौर पे आपने टॉपिक सेलेक्ट किया द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन सोशल हायरार्कीज इन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अच्छा अब आपने ये अब टॉपिक के बाद आपने रिसर्च प्रॉब्लम क्या ढूंढी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड पावर डायनेमिक्स टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ कास्टिज्म। यानी जैसे इस नावल के अंदर हमें कास्टिज्म का एक बड़ा यानी कंक्रीट कंसेप्ट नजर आया, किस तरीके के साथ जो था ना कि यानी कास्टिज्म और कॉलोनियलिज्म आपस में जुड़ा हुआ है, किस तरीके के साथ जो था ना कि लोगों का एक मैसिव स्केल एक्सप्लोटेशन हो रहा है। ठीक है, ये हमें बात बताई है। तो ये था रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम के लिहाज से क्या होता है कि हमें उसके लिए जो रिसर्च लिटरेचर होता है वो भी हमें पढ़ने की जरूरत होती है। यानी हमें आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि जब हम एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम उसके ऊपर जो किताबें लिखी गई होती हैं, जो हमारे आर्टिकल लिखे गए होते हैं, जो मज़ामीन लिखे गए थे, हम उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि हम उसके सारे के सारे जितनी चीज़ें लिखी हैं उसमें से पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद हम जो है ना ये वाज़ह करते हैं कि इन सारी चीज़ों के अंदर ये मसला है जो एड्रेस नहीं हुआ, जो मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से वो कहते हैं जब आप रिसर्च वगैरह करते हैं ना तो आप देख लें कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, जो आपने प्रॉब्लम अपने निकालनी है, ठीक है, उसके बारे में जो आपकी रिसर्च है वो फिजिबल भी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि आपके पास कोई सोर्सेज वगैरह ना हो तो आप प्रॉब्लम को वैसे ही आप लेके बैठते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, पर्पज़ इसका होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस होती है। तो ये डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अब हम आगे चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो इसके बाद आता है। देखिए हम डेटा कलेक्शन करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स दैट वी कैन यूज़ फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जी एक होता है, ओके, देयर आर 6 मेथड्स, ठीक है, ऑफ डेटा कलेक्शन। रिसर्चर्स कैन हैव देयर पार्टिसिपेंट्स टू फिल आउट an instrument or perform a behavioral design to measure their ability to degree हासिल। यानी हम टेस्ट के जरिए जो है टेस्ट करके भी हम डेटा जो है गैदर करते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर होता है रिसर्चर्स कैन हैव रिसर्च पार्टिसिपेंट फिल आउट सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चनेयर होता है। अब क्वेश्चनेयर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इसमें देखें कि अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ओपन एंडेड भी होते हैं, क्वेश्चन क्लोज एंडेड भी होते हैं। क्लोज एंडेड देखें क्वेश्चन होते हैं कि जब आप लेट्स सपोज कि आप किसी से यानी जो होता है ना कि अगर हम क्लोज एंडेड में हम देखते हैं, हम किसी को एमसीक्यूज दे दें, हम ट्रू फॉल्स दे दें, या हम इसको आमतौर पर बता देते हैं ना, किसी को क्वेश्चनेयर देते हैं कि उसमें हम लिखा होता है कि अग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, पार्शियल, ये हम दे देते हैं। तो ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जो हम जिसके अंदर अगले बंदे की पर्सनल राय लेने की हम कोशिश करते हैं। तो ये होता है क्लोज एंडेड। ये तो क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर जो होता है ना हम लोगों को देते हैं और लोगों को दे के उससे हम एक सर्वे करते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर आपका कॉलेज, आपके कॉलेज में आप ये जानना चाहते हैं, यानी आपका सर्वे होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी आपका सर्वे करवाती है कि कितने बच्चे जो होते हैं ना कि वो हमारे इस यानी जो सेमेस्टर हमारा जो सिस्टम है इससे सेटिस्फाइड है, कितने नहीं हैं। तो वो आपको जो होता है ना कि वो एक आपको क्वेश्चनेयर देते हैं। क्वेश्चनेयर के ज़रिए वो आपका फिर उसके बाद एनालिसिस किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब आमतौर पे कॉलेजेस के अंदर जब SAR होती है ना, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, तो वो भी इसी के ऊपर बेस कर रही होती है। इसके बाद इंटरव्यूज़ का मेथड होता है। ठीक है, रिसर्चर्स कैन टॉक टू द पार्टिसिपेंट्स इन पर्सन ओवर द टेलीफोन। ठीक है, अब इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू देखें स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं
हैं और इंटरव्यू होते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज इसके नाम से ज़ाहिर है कि वो इंटरव्यू होते हैं जिसके अंदर पहले से तयशुदा किया जाता है। नॉन स्ट्रक्चर्ड होते हैं जिसके अंदर तयशुदा नहीं किया जाता। तो इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी हम अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर हम ये जानना चाहें कि हमारे इस सिटी के अंदर, ठीक है, कितने लोग देसी फूड लाइक करते हैं, कितने लोग फास्ट फूड लाइक करते हैं, हम उसमें सारे लोगों के इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं, क्वेश्चनियर के ज़रिए भी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है अगला कंसेप्ट, रिसर्चर्स कैन डिस्कस इश्यूज़ विद द मल्टीपल रिसर्च पार्टिसिपेंट्स एट द सेम टाइम इन अ स्मॉल ग्रुप्स सेटिंग फोकस ग्रुप, यानी लोगों को इकट्ठा करके, ठीक है, तो ग्रुप्स के साथ, ग्रुप्स के अंदर भी डिस्कस किया जा सकता टॉपिक्स। इसके बाद ऑब्जर्वेशन वगैरह होता है। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ वन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज कॉल्ड इंट्रा मेथड मिक्सिंग, ठीक है, और मिक्स्ड क्वेश्चनियर, ठीक है। ये भी चीज़ें हो सकती है, यानी ये हमारा डिफरेंट तरीके के साथ हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, जो ये भी मौका महल की मुनासबत के साथ ही चीज़ें ज़रूरी होती है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, ये जी टॉपिक आ गया, इसको हम कहते हैं रिसर्च एथिक्स। अब रिसर्च एथिक्स क्या होती है? एथिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी हम जानते हैं कि एथिक्स जो होता है वो राइट एंड रॉन्ग की स्टडी के ऊपर बेस करती है। हम एथिक्स के डिफरेंट थेरीज भी हैं, यूटिलिटेरियनिज्म भी है, क्रिश्चियन एथिक्स भी हैं, कांशियन एथिक्स भी हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइन दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग एंड व्हाट टू डू, ठीक है। अब रिसर्च एथिक्स असिस्ट रिसर्चर्स इन कंडक्टिंग एथिकली साउंड रिसर्च स्टडीज, ठीक है। अब देखें कि प्रोफेशनल एथिक्स इश्यूज होते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड साइंस, ठीक है। अब हर चीज़ के देखें हर शोबा जात की एथिक्स होती हैं। अगर देखें, अगर मेडिकल के शोबे की बात करें तो मेडिकल के शोबे की एथिक्स, अगर कोई डॉक्टर अगर किसी यानी पेशेंट का इलाज करता है या उसको कोई ऐसी बीमारी है जो वो लोगों को नहीं बता सकता, ठीक है, तो यानी वहाँ उसकी एथिक्स का तकाजा होगा कि वो उसको उसका राज भी रखे, ये सारी चीज़ें यानी उसको ज़हन में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एथिक्स के डिफरेंट लेवल पे एथिक्स हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस हवाले से देखते हैं कि एथिक्स, रिसर्च एथिक्स में हम क्या क्या देखने हैं, ठीक है। अब रिसर्च एथिक्स कहते हैं द नेसेसिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, कि फ़र्ज़ करें कि आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके साथ अगर आपकी टीम है या आपके पार्टिसिपेंट हैं, आपको पहले उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं कि आप उनसे इजाज़त लिए बगैर जो होता है ना कि आप उनसे डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दें, आप उनसे ये सारी चीज़ें करनी। इसके बाद क्या होता है कि ये देखें असेंट डिसेंट विद माइनर्स, पैसिव वर्सेस एक्टिव कंसेंट, ठीक है, यानी आप जो कंसेंट होती है, ठीक है, जो इजाज़त होती है वो पैसिव भी होती है, वो एक्टिव भी होती है। लेकिन क्या होता है, कहते हैं ऑल दो एक्टिव कंसेंट इज प्रेफरेबल एंड इंश्योर्स दैट द पार्टिसिपेंट हैज़ अंडरस्टूड द डिमांड्स एंड द रिस्क ऑफ द स्टडी, पैसिव कंसेंट इज समटाइम्स यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च टू इंक्रीज। अच्छा, यानी ये भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि जो आमतौर पर कहते हैं कि जो आपकी जो कंसेंट होती है वो एक्टिव कंसेंट होती है। इसके बाद का डिसेप्शन, ठीक है, समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू मिसलीड और विद होल्ड इन्फॉर्मेशन फ्राम रिसर्च पार्टिसिपेंट व्हेन दिस इज नेसेसरी द रिसर्चर मस्ट यूज डीब्रीफिंग, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि कोई इसमें आप किसी वजह से कोई बात को छुपाना चाह रहे हैं ना, ठीक है, यानी ऐसे कि जैसे आप दूसरे को यानी पार्टिसिपेंट को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है कि आप उसको किसी वजह से, यानी ऐसे नहीं है कि गैर अखलाकी तौर के ऊपर आप अगर किसी वजह से छुपा रहे हो तो बाद में आपको चाहिए कि आप उसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। फ्रीडम विदड्रा, ये नाम से बिल्कुल वाज़ह है कि पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो विदड्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोनिमिटी एंड द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेसी, देखिए अगर फ़र्ज़ करें कि आपको तहकीक कर रहे हैं, ठीक है, आपको रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपका तो आप उसमें जो जिन लोगों से आप डेटा वगैरह ले रहे हैं इंटरव्यूज़ के ज़रिए, जिस जरिए भी आप ले रहे हैं, तो आप उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, आप उनकी जो राजदारी होती है उसको तो आप ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि आप मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें कि अगर किसी इलाके के अंदर कोई एक ऐसा शख्स है जो इलाके के लोगों को बहुत तंग कर रहा है, आप उसके ऊपर तहकीक करना चाह रहे हैं कि कितने लोग जो होते हैं ना वो उसके बारे में क्या व्यूज़ देते हैं, तो आपको चाहिए ना कि आप लोगों की राजदारी को फिर यानी मलहूज़ हातर रखें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एथिक्स के अंदर। तो अगर हम देखें राइटिंग के अंदर, हम देखते हैं राइटिंग के अंदर ख़ास तौर पे जब हम थीसिस वगैरह करते हैं तो उसमें प्लेजरिज्म का एक बहुत एलिमेंट आ जाता है, तो प्लेजरिज्म भी एक रिसर्च एथिक्स के यानी मुखालफत में आती है, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए आगे ना सैम्पलिंग आता है। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ सैम्पल
सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए आप सारी पॉपुलेशन की स्टडी तो नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं कि उसके अंदर से सैंपल ड्रा करते हैं अगर हमने कोई तहकीक करनी होती है। ठीक है, व्हेन वी सैंपल वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सबसेट कॉल्ड सैंपल। ठीक है, सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप। देखिए अब इसमें दो चीज़ें आ गई कि लार्जर ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं और जो छोटा ग्रुप होता है उसको हम सबसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर हम ये यानी कंडक्ट करने को रिव्यू हम कंडक्ट कर, अभी हमने जैसे बात की थी। ठीक है, कि हम कहते हैं कि जी इस सिटी के अंदर कितने लोग जो होते हैं ना कि वो यानी देसी खाना लाइक करते हैं, कितने लोग जो है फास्ट फूड लाइक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एक सैंपल पूरी पॉपुलेशन की रिसर्च करना तो बहुत मुश्किल होगा ना, पूरी पॉपुलेशन से यानी डेटा कलेक्ट करना। तो हम उसको क्या करेंगे, हम कहते हैं कि जी हम ऐसे करेंगे कि हर मोहल्ले के अंदर से ना 10-10 लोगों से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, तो एक सैंपल वाली तकनीक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आगे बताते हैं कि इफ़ द रिसर्चर सेलेक्ट्स सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन यूजिंग अ रैंडम सैम्पलिंग मेथड देन द सैंपल विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग का कंसेप्ट। अब इसमें सैम्पलिंग के कंसेप्ट में इसमें आगे यानी सिस्टमेटिक सैंपल भी आता है, इसके बाद जो स्ट्रेटिफाइड सैंपल भी आता है, क्लस्टरिंग सैंपल भी आता है, सिस्टमेटिक सैंपल भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ अच्छा, अब ये चीज़ें जो होती है ना हमारे ये यानी डायरेक्टली अगर हम देखें तो जब हम लिटरेचर की स्टडी हम करते हैं तो यहाँ किसी हद तक ठीक है हमारे काम आता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो प्योरली चीज़ें हैं ना ये सोशियोलॉजी वगैरह की रिसर्च होती है, दूसरी रिसर्च होती है, वहाँ सोशल साइंसेस की वो दूसरी रिसर्च के अंदर ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारा एंड वाला टॉपिक है। ठीक है, एंड वाला टॉपिक है कि रिसर्च प्रपोजल क्या है। रिसर्च प्रपोजल देखिए ये चीज़ होती है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने जब रिसर्च करनी होती है ना, रिसर्च करने से पहले आप एक प्रपोजल लिखते हैं, प्रपोजल के खास फॉर्मेट होता है, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, उसमें सारी चीज़ें बताते हैं। आप कहते हैं रिसर्च प्रपोजल इज़ डिवेलप्ड बिफोर यू कंडक्ट रिसर्च स्टडी। ठीक है, तो द प्रिपरेशन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल इज़ अ गुड एक्सरसाइज बिकॉज इट फोर्सेज यू टू थिंक थ्रू ईच स्टेप। यानी आपको फ़र्ज़ करें कि आपका सुपरवाइजर कहता है कि आप जिस मौजू पर रिसर्च करना चाहते हैं उसका प्रपोजल लिखें। प्रपोजल में आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, यानी व्हेन राइटिंग द इंट्रोडक्शन यू मस्ट एस्टैब्लिश द इंपॉर्टेंस एंड पोटेंशियल। आप बताएंगे कि यानी मैं जो रिसर्च करने जा रही हूँ लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में, उसकी अहमियत क्या होती है। फिर उसके बाद आप रिसर्च मेथड अपना बताएंगे कि मैं डेटा डेटा क्या कलेक्ट करूँगा। आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएंगे किस किस जरिए आप अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। तो यानी ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, फिर इसके बाद हम डेटा एनालिसिस अब कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो सारी चीज़ों का जो होता है ना यानी जो बात हमारे सामने आती है तो वो यही है कि रिसर्च जो है ना प्रपोजल। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल के बाद आपका जो सुपरवाइज़र होता है वो आपको बताता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्या खामियाँ हैं। ठीक है, तो इसलिए रिसर्च प्रपोजल जो था ना बहुत अहम होता है। ख़ासतौर पे ये देखा जाता है कि जिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की बात करें, तो जब वो एमफिल या पीएचडी में दाखिला देती है ना, तो पीएचडी में अगर हम बात करें तो पीएचडी से पहले वो जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको बोलते हैं आप अपना रिसर्च प्रपोजल लिखें। तो वो रिसर्च प्रपोजल पहले उनके पास चला जाता है और वहाँ से उनका जो पैनल होता है बैठता है, तो वहाँ से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि यानी इसका क्या एकेडमिक इसकी यानी इल्मी और रिसर्च इसकी कंट्रीब्यूशन क्या आगे रहेगी। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट है जो मैंने डिस्कस किए हैं। मैंने पहले ये बताया कि ये लेक्चर ये इतना लंबा टॉपिक है तो एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश की है कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उसको डिस्कस कर दूँ। थैंक यू सो मच।